سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن أولياءه إلا المتقون. آئیے بارگاہ رسالہ میں درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بار درود شریف اور پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں. یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر ولیوں کی تعریف کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولیوں کی تعریف قرآن کے اندر کی ہے. ان اولیاء الا المتقون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ کے ولی پرہیزگار اور متقی ہیں. تو ولیوں کی تعریف کرنا اللہ ہی کی تعریف کرنا ہے. ولیوں کی محفل میں بیٹھنا اللہ کی خوشنودی ہے. ولیوں کا ذکر کرنا، ولیوں کے نام پر خرچ کرنا، یہ اللہ کی خوشنودی، اللہ کے رسول کی خوشنودی ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے. اگر کوئی ولی کی بارگاہ میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی محبت کرتا ہے. ولیوں کی محفل میں بیٹھتا ہے، ولیوں کا ذکر سنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی محبت کرتا ہے. تو ولیوں کی نسبت سے ولیوں کے پاس جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں سے ولیوں سے تو محبت کرتا ہی ہے، لیکن جانے والے سے بھی محبت کرتا ہے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کے لیے دونوں جہاں میں کامیابی کامرانی ہے. تو آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اللہ کے ولیوں کی نسبت سے اور آل رسول کی نسبت سے. اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے. بے شک اللہ کے محبوب نے فرمایا حسین من علی من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. تو حسین کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اور اللہ کے رسول کی محبت اللہ کی محبت. تو ہم آل رسول کی نسبت سے یہاں جمع ہوئے ہیں. ہمارا کوئی ذاتی کوئی پروگرام نہیں. اگر ہم آئے ہیں دور دراز سے، فہیم بابا بھی آئے ہیں، ہمارے تپن شاہ بابا بھی آئے ہیں. میں سفیرہ بہانپور میں وہاں عظمت اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ ہوئی آیا ہوں. ایک بار پروگرام بھی پڑھا تھا میں نے، اور بہت اچھا موسم رہا. صبح کو سردی بھی ہو گئی تھی، بارش بھی ہو گئی تھی. ہاں کئی سال کی بات ہے. ہاں اب تو شاید مزار اچھا بن گیا ہوگا، جب تو شروع رات کا ہی تھا. کہاں تو یہ ولیوں کی محبت ہے. ہمارا کوئی آپ کا کوئی ذاتی معاملہ نہیں. اگر ہم جس نسبت سے یہاں بیٹھے ہیں تو ولی کی نسبت سے بیٹھے ہیں، آل رسول کی نسبت سے بیٹھے ہیں. اور آل رسول اپنے درجات میں سب اعلیٰ ہیں. آدمی کے ذہن کیا ہوتا ہے کہ اپنے ذہن کو چھوٹا کر لیتا ہے، لیکن آل رسول کے بارے میں کسی نے پوچھا کہ خواجہ صاحب بڑے ہیں یا قطب مزار سید بدر رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہیں؟ تو جواب یہ دیا گیا کہ دونوں ہی بڑے ہیں. آل رسول کا مقام ہی الگ ہے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے. آل رسول ہی ہیں.
तो आले रसूल से जो निस्बत रखता है तो रसूल उससे मोहब्बत करते हैं, और रसूल जिससे मोहब्बत करने लगे तो अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है। तो आलम पना आलम नवाज हाजी वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह आले रसूल हैं, और आका हुसैन की 26वीं पुश्त में है। तो ये आले रसूल हैं, और जहां जहां बुजुर्गान दीन, बड़े बड़े बुजुर्गान दीन हिंदुस्तान के अंदर या कहीं भी, वो सब आले रसूल हैं और बड़ी मेहनतें की हैं। हिंदुस्तान के अंदर भी और जगहों पर भी सबने बड़ी मेहनतें की हैं। कुतुबुल मनार सैयद बदरुल रहमतुल्लाह अलैह मक्कनपुर वाले, ये भी आले रसूल हैं, और जिनकी निस्बत से यहाँ बैठे हैं वो भी आले रसूल हैं, और जिनकी 11वीं मना रहे हैं वो भी आले रसूल हैं। सारे यानी आले रसूल हैं। गौसे आजम आले रसूल हैं, और गौसे आजम ने तो वारिस पाक का मकाम बताया। वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह का अक्सर एक जगह जमकर कहीं नहीं बैठ कायम रहता था। एक आध दिन रुके, 2 दिन रुके, अपने ज्यादातर उनका सफर ही रहता था। और बहुत बार सफर मदीने का भी किया। जब जाते थे, जब हिंदुस्तान आ जाते फिर याद आती थी आका की, तो फिर चले जाते थे। तो एक बार उन्होंने इरादा किया कि बगदाद में हाजिरी होना चाहिए। बगदाद का जब इरादा किया, जब इरादा कर लेते थे वहां पहुंचते थे। तो आप बगदाद का जब इरादा बगदाद का जब सफर किया, तो आपने गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने खादिमों को बशारत दी कि हमारा पोता हिंदुस्तान से आ रहा है। ये गौसे आजम फरमा रहे हैं कि हमारा पोता हिंदुस्तान से आ रहा है, और वो सिला हुआ लिबास नहीं पहनता है, लिहाजा उसे 2 तहमत अता करना। वारिस पाक का जो लिबास था, एक तहमत बांधते थे और एक जेब तन कर लिया करते थे, ये आपका लिबास था। तो उन्होंने वारिस पाक की शान बताई कि हमारा पोता हिंदुस्तान से आ रहा है, सिला हुआ लिबास नहीं पहनता है, उसे 2 तहमत अता करना। वहां का ऐसा कोई जाता था तो जलते टाइम जब रुखसत होती तो तहमत देते थे, एक तहमत देते थे। तो आपने कहा कि हमारा पोता हिंदुस्तान से आ रहा है, सिला हुआ लिबास नहीं पहनता, उसे 2 तहमत देना। आपने हाजिरी दी, और हाजिरी दे के जब रुखसत हुए तो 2 तहमत दिए गए। तो खादिमों ने कहा कि सबको 1 तहमत दिया जाता है। तो कहा कि गौसे आजम में बशारत दी रात को कि हमारा पोता हिंदुस्तान से आ रहा है, सिला हुआ लिबास नहीं पहनता है, लिहाजा उसको 2 तहमत अता करना। तो ये शान है वारिस पाक की। वारिस पाक करबला की सरजमीन पर पहुंचते हैं और रोज़ाए इमाम हुसैन के रोजे पर हाजिरी देते हैं। जहां का इरादा कर लेते थे वहीं पहुंच जाते थे। अल्लाह वालों को क्या है, अल्लाह का एक निज़ाम है, जब जिससे अल्लाह ताला मोहब्बत करता है उसकी हर चीज को आसान कर देता है। और यकीन भी होना चाहिए और दिल से मोहब्बत होना चाहिए। तो आपने रोज़ा हुसैन पर जब हाजिरी दी और जब दुआ कर रहे थे, तो करबला का जो मंजर था, तो करबला का मंजर गुजरा था, वो आपके जहन में आ गया। करबला का मंजर तो इतना ऐसा है कि अच्छे अच्छे के जहन थोड़ा सा नर्म हो जाते हैं और आंखें अश्कबार हो जाती हैं। तो आप पे जब नहीं रुका गया, रोज़ा हुसैन पर खड़े हुए, वहां खड़े थे, दुआ कर रहे थे, तो आपकी आंखों से जब करबला का मंजर जहन में आया तो आपकी आंखों से अश्क जारी हो गए। आपकी आंखों से अश्क जारी हो गए कि आका हुसैन पे, हमारे दादा हुसैन पे ऐसा ऐसा मंजर गुजरा, इस तरह से जो भी कुछ किया लोगों ने, तो आप अश्कबार हो गए। तो रोज़ा हुसैन से आवाज आती है, ना रोइए ना रुलाइए, आप मेहमान हम मेजबान है। ये आका हुसैन की रोजे से उसका आवाज आई। तो ये वारिस पाक का मकाम है कि आका हुसैन के रोजे से आवाज आ रही है। आका हुसैन बता रहे हैं कि हमारे पोते का ये मकाम है। जब यानी औलाद पे कोई तकलीफ गुजरती है तो माँ बाप को बर्दाश्त नहीं होती। तो आपके पोते हैं, आका हुसैन के पोते हैं, तो आका हुसैन के रोजे अनवर से आवाज आई, आप मेहमान, ना रोइए ना रुलाइए, आप मेहमान है हम मेजबान है। तो वारिस पाक की वो शान है कि आले रसूल हैं और रसूल की आल में से हैं। तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया, जो मेरी आल से मोहब्बत करता है मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, और जो मुझसे मोहब्बत करता है अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है। जो मेरी आल से बुग़्ज़ रखता है तो
वो उसका ठिकाना वो जान ले कहाँ पे है। तो आका यानी वारिस पाक की जो मोहब्बत है, आले रसूल की मोहब्बत है, सब आले रसूल हैं, सब अपनी जगह हक हैं, उनका मर्तबा, उनका मकाम, उनकी शान अल्लाह अल्लाह के रसूल जानते हैं। हमें तो जितना अल्लाह ने जहन दे दिया, बता दिया, उससे आगे पीछे नहीं होना चाहिए, अपने जहन को इधर उधर नहीं करना चाहिए। किसी ने कहा है शायर ने कि बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमें तो रसूल पाक का दीवाना चाहिए, हमें तो रसूल पाक का दीवाना चाहिए। और कम ज़र्फ की समझ में मोहब्बत ना आएगी। मोहब्बत का मकाम हर कोई नहीं समझ सकता है, जिसको अल्लाह समझा दे वही समझेगा। वारिस पाक का क्या मकाम है, हर किसी की बस की बात नहीं। गौसे आजम का क्या मकाम है, क्या शान है, हर किसी की बस की बात नहीं। हाँ, अल्लाह समझा दे, अल्लाह उसके जहन को या उसके सीनों को कुशादा कर दे तो वो ही समझ सकता है, हर किसी की बस की बात नहीं है। तो हमें थोड़ा सा अपने हिसाब के एतबार से बोलने की भी इजाजत नहीं है। जितना हमने समझ लिया उससे हम कम ही बोलें। तो फरमाया कि बुलबुल को भी शम्मा को परवाना चाहिए, हमें तो रसूल पाक का दीवाना चाहिए। और कम ज़र्फ की समझ में मोहब्बत ना आएगी, आईने को पत्थर से ना टकराना चाहिए। मोहब्बत को जिसने समझा, जिसने अल्लाह ताला ने जिसे समझा दिया, वो समझ गया। तो मोहब्बत को समझा, किसने समझा? आले रसूल की मोहब्बत, रसूल की मोहब्बत किसने समझा? अबू जहल भी सामने था, वो नहीं समझा। उतबा भी सामने था, उमैया भी सामने था, सारे के सारे सामने। लेकिन अल्लाह ने, अल्लाह की जिस पर नजर करम थी, अल्लाह का करम था, वही समझता है। जिस पर अल्लाह का करम होता है वही सही बात को समझता है, और जिस पर करम नहीं होता वो सही बात को नहीं समझता, वो बुराई को समझता है। वो बेहतर बुराई को समझता है। अल्लाह का जिस पर करम होता है वो अच्छाई को बेहतर समझता है, वो अच्छाई उसके जहन में जगह करती है। तो जब समझा, अल्लाह ने जिसे समझाया, अल्लाह ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को समझाया मोहब्बत का मकाम क्या है, तो उन्होंने समझ लिया कि रसूल का मकाम क्या है। चारों खलीफाओं को समझाया, इसी तरह से गौसे आजम को समझाया, तो गौसे आजम ने समझ लिया। तो ये मकाम जो है अल्लाह वालों का या आले रसूल का, ये हर किसी की बस की बात नहीं है समझना। लोग कुछ से कुछ कह दिया करते हैं, लेकिन वो अपने ईमान की खैर मनाएं, ऐसे लफ्ज बोल जाते हैं वो थोड़े आगे पीछे, तो ईमान भी चला जाता है, उन्हें पता ही नहीं, ईमान भी खत्म हो जाता है। तो आले रसूल अपनी मकाम, अपना शान, अपनी अपनी जगह हर आले रसूल रखता है, उसमें छोटा बड़े का कोई मामला ही नहीं। तो अल्लाह का एक निज़ाम है भाई। आले रसूल तो आले रसूल ही हैं, आला हैं, वो तो आला है। गौसे आजम भी आला है, ख्वाजा पिया भी आला है, साबिर पिया भी आला है, वारिस पिया भी आला है, और कुतुबुल मंदार सैयद वजीर भी आला है, शम्स आरिफीन भी आला है, सुल्तान आरिफीन भी आला है, सब आला ही है। तो वो तो आला ही है, तो उनके मकाम को क्या समझोगे? अगर मकाम को समझना है तो मैं इस जुमले को दे रहा हूं, अगर मकाम को समझा है तो आला से और आला होगे जब तो समझोगे। अदना क्या समझेगा? अदना को जो बता दिया वही तो समझेगा, लेकिन आला को अदना क्या समझेगा? आला अदना को समझ सकता है, एक आलिम जाहिल को समझ सकता है, जाहिल आलिम को नहीं समझ सकता। एक अल्लाह वाला अल्लाह वाले को समझ सकता है इसका मकाम क्या है, और दूसरा नहीं समझ सकता। तो किसी की शान में थोड़ा सा यानी अदब के मामले हैं और लिहाज के मामले, हमें जितना सगदी उससे हम और नीचे दर्जे में ही रहना चाहिए, इसी में हमारी खैर है, नहीं तो ईमान का खतरा रहता है। तो जो आला है रसूल, यानी अल्लाह के आले रसूल तो आला हैं, तो उनको तुम क्या समझोगे? अगर उनको समझना है तो उससे भी ज्यादा तुम्हें, अगर अल्लाह यानी आला होगे जब तो समझोगे, लेकिन रसूल की बात ही है, रसूल और आले रसूल के सबका मकाम सब बाद है। तो बाद वाली क्या समझेंगे? पहले वाला समझ सकता है, जो आला है वो अदना को समझ सकता है, अदना आला को क्या समझता है? जितना अल्लाह समझा दे, अल्लाह ने कहा अदब करना है, अदब से बैठना है, इनकी बारगाह में आना है। हमारे दोस्त हैं, इनकी बारगाह में आना, अदब से बैठना, अदब से दुआ करना है, इनसे मोहब्बत रखना है और इनकी निस्बत को पाना है। तो जो जितना अल्लाह ने बता दिया, अल्लाह के रसूल ने बता दिया, वहीं तक रहो, और उससे आगे पीछे हटोगे तो तुम्हारी खैर नहीं ईमान की।
खैर नहीं है। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। हमने जहनों में बड़ी जहालियत गुमराही भी बहुत फैल रही है। अपने आप को सब आला समझते हैं, कोई उनका पीर है कोई उनका पीर है। ये बहुत गलत बात है। आला रसूल यानी आले रसूल हैं, किसी भी सिलसिले से हो। और हम तो खुशी की बात है, चाहे वो साबरी हो, चाहे वो मंदारी हो, चाहे चिश्ती हो, चाहे बारसी हो, अगर वो सामने से आता है तो अपना तो ये मामला है कि वो हमारा दिल अंदर से खुश होता है कि वो हमारा भाई है, हमारा भाई है। कि हम एक बाप दादा की औलाद हैं, हम सब एक बाप दादा की औलाद हैं। मुझे खुशी होती है, बारसियों में जाता हूँ, चिश्तियों में जाता हूँ, कादरियों में जाता हूँ, किसी में जाता हूँ, अपने भाइयों में जाता हूँ। जो अपने भाइयों में जाता है तो उसे भाइयों से जब मिलता है तो उसे दिली खुशी होती है। ये तुम्हारा मेरा मामला नहीं, ये कुदरती मामला है, कुदरत की तरफ से मोहब्बत है। क्या बारसियों में से ही मोहब्बत मिल रही है, चिश्तियों से ही मोहब्बत मिल रही है, कादरियों से ही मोहब्बत मिल रही है। तो ये हम देखो एक ही बाप दादा की औलाद है। शहंशाह बली हजरत अली शेर खुदा, सारे सिलसिले वही मिलते हैं, सारे सिलसिले वही मिलते हैं, कोई सी सिलसिले का हो। तो हमें खुशी होना चाहिए हमारे सिलसिले का है और हमारे यानी अकीदे का है, तो हमारे दिल को खुश होना चाहिए। आला अदना को भूल जाओ, ये सोचो कि ये हमारा भाई है, ये हमारे सिलसिले का है, ये कादरी हमारा भाई है, चिश्ती हमारा भाई है, बारसी हमारा भाई है, और साबरी हमारा भाई है, मदारी हमारा भाई है, सारे हमारे भाई हैं। और मेरा तो मकसद, मेरा तो मिजाज यही है, कोई भी मेरे सामने आ जाए अपने सिलसिले का हो, वो उससे मुझे खुशी होती है, मुझे खुशी होती है। ये मेरा भाई है, क्योंकि मैं सारे सिलसिले एक ही जगह मिलते हैं। यानी अब्दुल जब्बार साहब जो बाई में मजार बना, गफ्फार शाह रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे बड़े वाले, वो उनके पास मेरा अक्सर बैठना उठना रहता था, बड़ी मोहब्बत करते थे। ये भी करम है उसका, गफ्फार मियाँ का फैजान है और सारे बुजुर्गान दीन का फैजान है। तो वो कब से कब कोई ना कोई जुमला ऐसा कह देते थे, वो जहन में फिट होता था और समझता था मैं। तो एक दिन बोले भाई मौलाना के हाँ भाई हम एक ही बाप दादा की औलाद हैं। तो मैं थोड़ी देर खामोश रहा, मैंने हक कह रहा बाबू, सारे सिलसिले हजरत अली शेर खुदा से मिलते हैं, शहंशाह बली हजरत अली शेर खुदा से मिलते हैं। तो हम सब एक बाप दादा की औलाद हैं। ये आला अदना का मामला छोड़ दो, ईमान तुम्हारे कहाँ कब निकल जाएंगे, नहीं, आले रसूल सब आला हैं। और आला को वो समझेगा जो उससे भी ज्यादा फाइनर हो, तो इससे ज्यादा फाइनर हो ही नहीं सकता। आले रसूल से तो आला कोई हो नहीं सकता, आले रसूल से कोई भी आला नहीं हो सकता। देखो रसूल के बाद जितने भी हैं वो अपने मकाम रखते हैं, रसूल का मकाम कोई नहीं ले सकता, सहाबा का मकाम कोई नहीं लेता। अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि असहाबिका नुजूम, सहाबा मैं चांद हूं और सहाबा मेरे सितारे हैं। सहाबा का मकाम गौसे आजम ने बताया, उनका महीना चल रहा है, बुजुर्गान दीन का महीना चल रहा है, बुजुर्गान दीन का फैजान चल रहा है, बुजुर्गान दीन की महफिल में बैठे हुए हैं। और हमें यकीन है कि अल्लाह के रसूल भी सुन रहे हैं, बुजुर्गान दीन भी सुन रहे हैं, वारिस पाक भी सुन रहे हैं, सारे आले रसूल अपनी महफिल को सुन रहे हैं। तो यहाँ यानी ये मकाम जो आले रसूल का है, तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया साबिका नुजूम, मैं चांद हूं और सहाबा मेरे सितारे हैं। तो गौसे आजम ने गुन्नतुत तालिबीन एक किताब है, उसमें लिखा कि सहाबा जब जिहाद को जाते थे और उनके घोड़ों की सुमों से जो गर्द गुबार उठता था, बड़े से बड़ा बली उस गर्द गुबार की मकाम को नहीं पहुंच सकता। तो ये तो सहाबा का मामला है, तो आले रसूल का मकाम क्या होगा और रसूल आजम का मकाम क्या है? ये तो सहाबा का मकाम बड़े से बड़ा बली यानी उस गर्द गुबार को नहीं पहुंचे, तो सहाबा का मकाम तो कितना ऊंचा है। और अल्लाह के महबूब ने तारीफ की कि मैं चांद हूं और सहाबा मेरे सितारे हैं। तो ये जो मकाम जिसको अल्लाह ने दिया, वो मकाम उसका दिया, जिसको जिस मकाम पे बिठा दिया उस मकाम पे दूसरा नहीं हो पाता था। इसी तरह से अब चला आ रहा है, गौसे आजम की शान है और तमाम बुजुर्गान दीन की शान है, ये मकाम है, ये हमें फक्र करना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम उनकी महफिलों में बैठते हैं, उनका जिक्र सुनते हैं। तो वहाँ जहाँ रहमत नाजिल होती है, फरिश्ते हाजिर होते हैं, फरिश्ते हाजिर होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, तो हमें इन मकाम को समझना चाहिए। ये गौसे आजम का महीना चल रहा है, 11वीं अक्सर सभी मनाते हैं, 11वीं ज्यादातर 17वीं 11वीं, और वैसे अपने अपने मकाम पे जो यानी तारीख है पर्दा फरमाने की होती है। हमारे वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की, गौसे आजम यानी ख्वाजा गरी नमाज की है, और जितनी भी तारीख हैं अब आगे चल के हमारे कुतुब मिराज सैयद वदीर रहमतुल्लाह अलैह का नवंबर में शायद आएगा। तो ये सारी चीजें उनके मौके पर होती हैं, लेकिन 11वीं तो सभी मनाते हैं।
11वीं मनाते हैं, तो ये 11वीं जो ताल्लुक रखती है, ये पर्दा फरमाने से ताल्लुक नहीं रखती। पीराने पीर की जो 11वीं है, पीराने पीर दस्तगीर गौसे आजम अपनी हयात जिंदगी में ही 11 तारीख को रसूल आजम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की न्याज किया करते थे, उनके लिए न्याज किया करते, सबको जमा करते थे और न्याज किया करते, दुआएं होती थी, जिक्र होता था, कुरान खानी होती थी। उसके बाद गौसे आजम में पर्दा फरमा गए तो बहुत बहुत लोग, मालदार बादशाह और भी लोग आते, असर के वक्त आते और फातह ख्वानी होती, कुरान खानी होती, और मगरिब के बाद उनके रोजे के पास जिक्र भी होता, और इशा के बाद लोग अपने अपने घर चले जाते। ये 11वीं गौसे आजम अपनी जिंदगी, हयाती जिंदगी में हवाला मिलता है कि गौसे आजम की वफात की तारीख 8 रबीउल अव्वल, 11वीं तो उनकी अपनी हयाती जिंदगी में ही है। तो 11वीं तो हम सब मनाते हैं, गौसे आजम है, तो सारे मामलात एक ही जगह पहुंचते हैं और सारे सिलसिले एक ही हैं। तो ये अब हम यहाँ वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के निस्बत से यहाँ जमा हुए हैं, और 11वीं तारीख से हमारे बाबू नसीरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह चिराग वारसियत इसको मनाते थे, और उनकी औलादें ही मना रही हैं, और वो काफ़ी इन चीज़ों से वो रखते थे, तो ये उनकी रूह को खुश कर रहे हैं, यानी उस मिशन को चल रहे हैं। तो दुआ किया करो और माज़ारात पे जाकर, मौला तबारक व तआला जिस मिशन पे ये कायम रहे उसी पे हमें चलने की तौफीक अता फरमा। जैसी जिंदगी इन्होंने गुजारी, तेरे रास्ते में तमाम जिंदगी अपनी वक्फ कर दी, हमें भी इसका थोड़ा सा हिस्सा अता कर दे, इनकी दुआओं में हमारा हिस्सा अता कर दे, इनके अखलाक जैसा हमें अखलाक अता कर दे, इनकी यानी अपने से मोहब्बत करने वाली मोहब्बत का थोड़ा हिस्सा अदा कर दे। जो मकाम था जो वो उन्होंने गुजारा वो तो नहीं हो सकता, लेकिन जब दुआ करोगे तो अल्लाह ताला कुछ ना कुछ तुम्हें अता कर देगा, अता कर देगा। इनका तरीका, इनका सलीका जो रहा जिंदगी में, उस पर हमें चलना कि ये दुआ किया करो, और अपने आप को बुराइयों से बचने की भी दुआ किया करो। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। तो बारी रशिया रहमतुल्लाह अलैह की बहुत सारी करामतें हैं, मैंने दो बाकी तो आपके सामने रख दिए। और भी यहाँ आपका ये एक वाकया है कि नखलऊ में, चौक में, अकबर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह आपके दौर में, वहाँ बड़े पाए के बुजुर्ग थे और आपकी थोड़ी सी उम्र थी। खादिम शाह रहमतुल्लाह अलैह आपके दरअसल में बड़ी सरफरस्त रहे, और आपके बहनोई भी हैं और आपके पीर भी हैं, और पूरी सरफरस्ती रही, आपकी सरफरस्ती में रहे। तो वो जा रहे थे नखलऊ, तो हाजी वारिस अली रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। थोड़ी सी उम्र थी तो पहुंच गए। तो वहाँ अकबर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए थे, तो जब देखा वारिस पाक को महफिल में दाखिल होने वाले थे, तो आप खड़े हो गए। और बुजुर्ग थे और बहुत चर्चा था उस दौर में, खड़े हो गए और वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह को अपने यानी सीने से लगाया और अपनी वहाँ गद्दी पे बिठाया, और सब लोगों से कहा कि ये बच्चा मादरजात बली है। छोटी सी उम्र थी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की, ये मादरजात बली है, और अब इस बच्चे की जैसा, यानी 1 साल तक हिंदुस्तान में ऐसा बच्चा, ऐसा बली पैदा नहीं होगा। तो अब तुम देख लो कितना अरसा गुजर गया, वारिस पाक को कोई आया उनकी टक्कर पे? अरे रसूल की, आले रसूल की टक्कर पे तो कोई आ ही नहीं सकता, वो तो आला है और आएगा भी नहीं। 1000 का उन्होंने टाइम दिया, लेकिन वो तो एक बता दिया मैदान उन्होंने, लेकिन अभी तक सैकड़ों साल गुजर गए, नहीं आ सकता। तो ये शान बताई, वारिस अली शाह पैदाइशी बली हैं। और एक वाकया ऐसा है आपका कि आपने वालदा ने कुछ मंगाया, धनिया मंगाया, हमारे चिरागे वारिस रहमतुल्लाह अलैह, हम बैठ जाते थे तो वारिस अली शाह के ऐसे यानी बात करने का उनका ढंग था कि वो कुछ भी बताते थे तो जहन में उतरती चली जाती थी। बुजुर्गों का ऐसा लहजा होता है, ये करामत होती है उनकी, ये करामत होती है, उनका नजर करम होती है कि वो बता दें तो हमारे जहन में उतर जाए, और काफी दिनों तक उतर ही रहे। तो उन्होंने बताया कि वो धनिया लेना भेजा वारिस अली शाह, मतलब उनकी वालदा ने। तो आपको शौक था शीनी बांटने का, आपने धनिया तो लाए नहीं, बताशा लिया और बच्चों में बांट दिया। अब उनकी जब बालदा का धनिया नहीं लाए तो बालदा ने कुछ थोड़ा सा उनके लहजे में सख्ती आई, तो आपके सहन में एक नीम का पेड़ खड़ा हुआ था और आप उसके पास गए, उसको पकड़ के हिलाने लगे और जुम्मे देने लगे, धनिये धनिये। तो उस नीम के पेड़ से धनिया ही धनिया झड़ रहा है, धनिया ही धनिया झड़ रहा। तो उनकी बालदा समझ गई ये तो अल्लाह के बली हैं। अब उस दिन से उन्होंने सख्त लहजे में कोई बात नहीं करी। तो ये करामत है, जब अल्लाह की बारगाह में जब हाथ उठा दें तो अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरियाए दजला के किनारे जा रहे थे, सबने सुना है कश्ती वाला वाकया, और जब तैर रहे थे मुरीदों के साथ
شام کا وقت تھا، ایک ضعیفہ بیٹھی ہوئی تھی اور مایوس تھی، رو رہی تھی، تو انہوں نے غوث اعظم نے کہا ضعیفہ کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہے، کیسی مایوس ہے؟ فرمایا کہ میں کسی پریشانی میں ہوں۔ تو بتایا پریشانی، بتا تو کیا بات ہے؟ فرمایا بہت سارے لوگ آئے، کسی نے پریشانی کا حل نہیں نکالا، کسی نے کوئی مدد نہیں کری۔ بولے کچھ بتا تو جبھی تو پتہ چلے گا، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکال دے۔ تو انہوں نے کہا میری بیٹی کی بارات جا رہی تھی اور 12 سال گزر گئے، میں تسلی تفصیل کے لیے یہاں آتی ہوں صبح کو اور شام کو چلی جاتی ہوں رو دھو کر، تو اس میں غرق ہو گئی اور وہ پوری بارات، دلہن، دولہا سب بیٹا میرا اس میں غرق ہو گیا۔ تو اچھا وہ اتنی ہی بات کہ ہاں؟ تو غوث اعظم نے ہاتھوں کو دراز کیا اللہ کی بارگاہ میں، مولا تبارک و تعالیٰ تو نے مجھے غوث بنایا ہے، مجھے کوئی پاور دی ہے، مجھے جو پاور دی ہے جب غوث بنایا ہے تو اس ضعیفہ کی جو مقصد ہے اس کو حل ہو۔ تو غوث اعظم نے جو دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، تو جب غوث بنایا ہے تو جو مقام بنایا ہے، جو اتھارٹی دی ہے، تو اس کا استعمال ہونا چاہیے۔ تو آپ نے جب دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ تو کیڑوں نے کھا لیا، کیڑوں نے کھا لیا، وہ ختم۔ بولے مولا تبارک و تعالیٰ تو نے مجھے غوث کا درجہ دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ ولیوں کے پاس پاور دی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، قرآن کا یعنی قرآن کا خلاصہ ہے، قرآن کی نے فرمایا انما ولیکم اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ولی ہوں، مددگار ہوں۔ اس کے بعد فرمایا انما ولیکم اللہ، میں مددگار تمہارا ولی ہوں، مددگار ہوں، ورسول ہوں، اور میرے بعد رسول بھی تمہارے مددگار ہیں۔ اس کے آگے فرمایا والذین آمنوا، کامل ایمان والے بھی تمہارے مددگار ہیں۔ یہ کامل ایمان والے کون ہے؟ بزرگان دین، ولی کرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پاور دی ہے کہ اللہ سے جو دعا کرتے ہیں اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، لیکن اللہ انہیں دیتا ہے، یہ ہم بندوں کو دیتے ہیں۔ جو مانگ لیتے ہیں اللہ اس کو قبول کرتا ہے اور فوراً عطا کرتا ہے۔ تو غوث اعظم کا اللہ تعالیٰ تو نے مجھے غوث بنایا ہے، کسی عہدے فائنل کیا ہے تو اس کو پورا ہونا ہے۔ تو اللہ کی جب بارگاہ میں دعا کی تو اللہ نے قبول فرمایا اور ان کیڑوں کو پیدا کیا، دوسرے کیڑے تو انہیں پیدا کیا، ان کیڑوں نے سب جو کھایا تھا ان کا جسم، اس کیڑوں نے سب اپنا جسم ان کے منہ سے نکالا انہوں نے، اور نکالنے کے بعد سارے اجزاء اللہ نے حکم دیا اکٹھے ہوئے، اور سارے اجزاء اکٹھے ہوئے سارے انسانوں کو ایک دم بنا دیا، اور سارے انسان بن گئے، پوری کشتی یعنی جیسے ڈوب ہوئی تھی ویسے ہی۔ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس الباری اخر، غوث اعظم نے فرمایا یہ پاور اللہ نے دی ہے، رسول نے دی ہے، رسول کا صدقہ ہے۔ ایک اللہ والے نے ہندوستان کے اندر اپنا جھنڈا گاڑ دیا اور راجہ پرتھوی کے سامنے کہہ دیا فقیر یہاں کیوں آیا ہے، یہاں سے نکل جا۔ میرے خواجہ نے کہا کہ تو بھی بدل دا، اور ایسا بدلا جو خواجہ کے زمانے اور ادھر سے جو زبان سے جو الفاظ نکلے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو